হাতে আপনার হাত ভেঙেছে, পা ভেঙেছে, আপনি যদি বলেন অপারেশন, ওনারা যদি বলেন অপারেশন করতে হবে, তাহলে অপারেশনের 30% পাবেন, 40% পাবেন, 50% পাবেন। কোনো নেতা মন্ত্রী এরা ফোন না করলে আপনাকে সেই হসপিটাল ভালোভাবে দেখবেও না। সরকারি হসপিটালে গেলে এই রোগের চিকিৎসা হবে না বলে বর্ধমান চলে যাও, ওই রোগের চিকিৎসা হবে না বলে কলকাতা চলে যাও। অর্ধেক পেশেন্ট কলকাতা বর্ধমান যেতে যেতে রাস্তাতেই প্রাণ হারিয়ে ফেলে। যদি কেউ কলকাতা বর্ধমান পৌঁছে গেলেন, তারপর সেখানে গিয়ে দালালদের চক্করে পড়ে বেড পাবে কি পাবে না তার ঠিক নেই। এই রকম স্বাস্থ্য পরিষেবা সারা পশ্চিম বর্ধমান জুড়ে প্রতিটি মানুষ আজকে ভোগ করছে। এই ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার বিরুদ্ধে পশ্চিম বর্ধমান জেলা যুব কংগ্রেসের আহ্বানে আজ থেকে আমরা শুরু করছি। আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মহানাগরিক প্রত্যেকের কাছে দরবার করেছি। আমরা বারবার বলেছি যে 87টির মধ্যে 30টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আপনারা গড়ে তুলেছেন, সেগুলোতে তালা লাগা অবস্থায় পড়ে আছে কেন? মেয়র সাহেব কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। উনি বলেছেন আমরা ডাক্তার পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা সরকারি দপ্তর থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 2021-এর পর থেকে মেলা খেলার নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচা তো করেন, কিন্তু সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচার নামে মানুষকে মাতিয়ে রাখেন, কিন্তু মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা করেন না। তাই 21-এর পর থেকে কোনো ডাক্তার নিয়োগ করেনি বলে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় যে 30টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তার 25টি থেকে 26টি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। কেন মানুষ তার সাধারণ সুবিধে স্বাস্থ্য পরিষেবাটা পাবে না? আমাদের দাবি এটাই। কেন প্রাইভেট হলে টাকার? আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মহানাগরিক প্রত্যেকের কাছে দরবার করেছি। আমরা বারবার বলেছি যে 87টির মধ্যে 30টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আপনারা গড়ে তুলেছেন, সেগুলোতে তালা লাগা অবস্থায় পড়ে আছে কেন? মেয়র সাহেব কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। উনি বলেছেন আমরা ডাক্তার পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা সরকারি দপ্তর থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 2021-এর পর থেকে মেলা খেলার নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচা তো করেন, কিন্তু সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচার নামে মানুষকে মাতিয়ে রাখেন, কিন্তু মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা করেন না। তাই 21-এর পর থেকে কোনো ডাক্তার নিয়োগ করেনি বলে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় যে 30টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তার 25টি থেকে 26টি বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। কেন মানুষ তার সাধারণ সুবিধে স্বাস্থ্য পরিষেবাটা পাবে না? আমাদের দাবি এটাই। কেন প্রাইভেট হলে টাকার? नो हेल्थ नो वोट पर लेके आंसर हुआ। देखिए 1993 साल में हमारा यूथ कांग्रेस का एक कैंपेन हुआ था पश्चिम बर्धमान में, राइटर्स बिल्डिंग का घेराव का। उस पश्चिम बंगाल में एक ही मांग रखा गया था, नो आइडेंटिटी नो वोट। उसमें हम तमाम लोगों ने देखा था जिस तरीके से गोली चलाकर हमारे 13 युवा कांग्रेस के साथियों को शहीद किया गया। और आज वही 21 जुलाई के दिन हम तमाम लोग नो हेल्थ नो वोट की जो मांग लेकर बैठे हैं, वो साफ शब्दों में हम लोग कहना चाहते हैं जो यहाँ का जिला प्रशासन है, जो यहाँ का CMO साहब है, वो अपने कुर्सी पर बैठकर यहाँ के आम साधारण व्यक्ति है उनके जो स्वास्थ्य की जो सिस्टम है उन तमाम चीज़ों को भूल गए। वो भूल गए ऐसी कमरों से कि जब डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं होकर वो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अटेंडेंस तो सरकारी हॉस्पिटल में करते हैं और जाकर प्राइवेट क्लिनिकों में बैठ जाते हैं, उसके बाद उस चेयर पर कुत्ते आकर बैठते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को वो भूल गए। वो भूल गए कि यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड के नाम पर जो छलावा ममता की सरकार कर रही है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है कि 5 लाख का हम हेल्थ कार्ड इशू करके दे रहे हैं तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में। देखा क्या जाता है? लूट। क्या लूट है? आप जब जाएंगे किसी को, जैसे ही वो हॉस्पिटल को पता चल गया कि आपके हाथ में वो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, वो सबसे पहले इनकार करेगा, ना यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड देख रहा है मतलब आपके पास बेड नहीं है। आप इधर उधर करके फ़ोन करिए किसी नेताओं को तो वो बेड दिला देंगे। बेड दिलाने के बाद वो बोलेंगे आधार लिंक नहीं है। आधार लिंक मिल गया तो वो बोलेंगे मोबाइल नंबर 1 डिजिट गलत है। वो मिल गया तो वो बोलेंगे शाम 5 बजे के बाद सर्वर डाउन है।
ये तमाम विषयों को लेकर वो सब भी हो गया, तब बोलेंगे हार्ट का ऑपरेशन होगा, हाथ का नहीं होगा। हाथ टूटा हुआ है तो वो बोलेंगे पेट का नहीं होगा। पेट खराब है तो वो बोलेंगे सर का नहीं होगा, बुखार का नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों का बहाना लेकर वो किसी ना भी किसी तरीके से आपसे पैसे लूटने का काम करेंगे। अब बात आती है जब हम लोग जिला अस्पताल में किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं, आप कोई भी चले जाइए, वहाँ पर आईसीयू बेड आपको नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? किसी बड़े व्यक्ति को फ़ोन करना पड़ेगा, उनके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, बार बार उनको घूमना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर आपका फ़ोन या इमरजेंसी कुछ हो गया तो आपको बोला जाएगा चले जाइए वर्धमान मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वो आप कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। या तो जाते जाते वो पेशेंट का मृत्यु होगा, या तो फिर जब वो अस्पताल में वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें वो बेड के लिए इधर उधर छटपटाते रहेंगे, लेकिन बेड नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ रूप से यहाँ पर किसी का अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, किसी को भी अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई। आज हमारा ज़िला एक ऐसा जगह है जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जहाँ पर 87 बिल्डिंग्स खड़े किए जाने का एक प्रस्तावित है, जहाँ पर 30 से प्लस लगभग 37 बिल्डिंग तैयार होकर रेडी है, लेकिन उस पर डॉक्टर नहीं है। हमारे महानागरिक साहब क्या कहते हैं? वो बोलते हैं डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपनी सरकार से पूछते नहीं है कि 2021 के बाद एक भी डॉक्टर का मैंने यहाँ पर नियुक्ति नहीं हुआ है। लेकिन वो पूछते नहीं है कि कलकत्ता में बैठकर अर्बन हॉस्पिटल चलता है, लेकिन हमारे यहाँ का शहरी हॉस्पिटल में ताला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ के महानागरिक साहब भी व्यस्त हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुंडा राजस्व करके यहाँ के डीएम साहब व्यस्त हैं। कैसे यहाँ पर 21 जुलाई में लोग भेजना है ये उनको याद है। 21 जुलाई में कैसे बस बढ़िया से कलकत्ता चले जाए, भर भर के चला जाए। सरकारी अस्पतालों में बैनर लग जाएगा 21 जुलाई का, लेकिन वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए कोई बैनर नहीं लगेगा। कोई हैजा, कोई महामारी के लिए पैसा आ जाए तो सब लूट होता है। इन तमाम चीज़ों का आरोप हम लोगों ने 2021 से कंटिन्यू चिट्ठी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आरटीआई का जवाब नहीं देते। चिट्ठी का जवाब को तो आप बात छोड़ दीजिए। हमने सीएमओ साहब से पूछा था यहाँ का जो ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड लगता है, जब हम तमाम लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं वो ब्लड नहीं मिलता है, लेकिन वही ब्लड प्राइवेट अस्पतालों में 5,000 10,000 रुपये देकर कैसे मिल रहा है? तो ये इनका जवाब नहीं है। हम लोगों ने पूछा था कि यहाँ पे ज़िला में कितने डॉक्टर हैं और क्या यहाँ के डॉक्टरों को प्राइवेट क्लिनिक चलाने का अधिकार है, तब सीएमओ साहब का जवाब नहीं है। हमने ये तमाम चीज़ों को फिर घुमाकर यहाँ के डीएम सर से पूछा, लेकिन वो सब भूल गए हैं, उनको याद ही नहीं है इन सब चीज़ों पर। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो परिवार है, जो हमारे ज़िला में रहने वाले लोग हैं, उनका स्वास्थ्य को लेकर खेला जा रहा है। उनको मौत के उनसे किसी भी बहाने पैसे लूटा जा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी को नहीं बचाया जा रहा है। मेरा नाम रवि यादव है, मैं जिला यूथ कांग्रेस का सभापति हूँ।